ఉంటాం. రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు సహజంగానే ఉంటాయి. కానీ అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పటికీ కూడా కార్యకర్త अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। दुबक असम्बली के जिमनी चुनाव में टीआरएस की शिकी से दिल बर्दाश्ता। पार्टी के एक जाननिसार 34 साल के स्वामी ने दौलताबाद मंडल के कोनीपल्ली में खुदकशी कर ली। उसकी नाश आज सुबह की अवलिन साहतों में एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई। उसके गले में गुलाबी खंडवा भी था। पसमानदगान में 3 बच्चे शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस हल्के में कल आए नताइज में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को मामूली अक्सरियत से कामयाब करार दिया गया था। वाक़े का इल्म होते ही रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव मुतवफ़ी के गाँव पहुंचे और पसमानदगान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। हरीश राव ने स्वामी की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उसके अर्थी को कंधा भी दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सियासी जमातों के हामियों की खुदकशी के वाकयात को टीआरएस ने ही बढ़ावा दिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में भी कई नौजवानों ने खुदकशी के जरिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस ने इन नौजवानों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया और उनके लवाखिन की मदद करने के ऐलान से मुनरिफ हो गई। కూడా చాలా దుఃఖపడ్డాం, బాధపడ్డాం. కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ కూడా కాపాడుకుంటుంది. మేమందరం కూడా మీకు పూర్తి అండగా ఉంటాం. రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు సహజంగానే ఉంటాయి. కానీ అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పటికీ కూడా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. స్వామి చాలా చురుకైనటువంటి కార్యకర్త. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ప్రచారంలో పాల్గొని రాత్రింబవళ్ళు పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ కార్యకర్త బకోళ్ళ స్వామి. మరి ఆ స్వామి కుటుంబానికి అన్ని రకాలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది. ఈరోజు 2 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా తక్షణం వారి కుటుంబానికి అందించాం. భవిష్యత్తులో కూడా స్వామి కుటుంబానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి అండగా ఉంటుంది. సో కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా ధైర్యాన్ని సహనాన్ని కోల్పోవద్దని, గట్టిగా మనోనిబ్బరంతో ఉండండి. అన్ని రకాలుగా కూడా పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. స్వామి పిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తులో మరి వారిని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో వారి చదివించడానికి కూడా వారి తల్లితో మాట్లాడి వారు కోరుకున్న విధంగా మరి భవిష్యత్తులో ఆ పిల్లలకు విద్యను కూడా అందిస్తాం. సో ఏది ఏమైనా కూడా స్వామి కుటుంబానికి, వారి తల్లిదండ్రులకు, వారి పిల్లలకు, వారి భార్యకు మరి అన్ని రకాలుగా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, కార్యకర్తలందరూ కూడా సహనంతో ఉండండి, మనోధైర్యంతో ఉండండి. మీకు పార్టీ అండగా ఉంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. మనం అనేక ఎన్నికల్లో గెలిచినాం. కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా అది సందర్భం ఇది కాకపోయినప్పటికీ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. బట్ ఓటమిని కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎవరు కూడా ఫీల్ కావద్దు. ఎందుకంటే మీరు ఏదో జరుగుతుందని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా మేము అందరం కూడా ఉన్నాం. మీ అందరినీ కూడా, ప్రతి కార్యకర్తను కూడా గుండెల్లో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటాం. కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి నేను మరోసారి కోరుతూ స్వామి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పార్టీ పక్షాన, గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి పక్షాన, వారి కుటుంబ సభ్యులకు పార్టీ పక్షాన ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబాన్ని పార్టీ అధ్యక్షుల ఆదేశాల మేరకు మేము అందరం ఇక్కడికి వచ్చాం. పార్టీ అధ్యక్షుల ఆదేశాల మేరకు మేము ఆ కుటుంబానికి సహాయం కూడా అందించాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా అన్ని రకాలుగా ఆ కుటుంబానికి పార్టీ మేమందరం కూడా అండగా ఉంటాం. అందరూ కార్యకర్తలు కూడా ధైర్యంగా ఉండండి. ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. భవిష్యత్తు ఎప్పటికైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీదే ఉంటుంది తెలంగాణలో. సో దీనికి మనం బాగా గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడమో లేదా ఓడిపోయినప్పుడు కుంగిపోవడం అనేటువంటిది ఉండకూడదు. ఇది స్పోర్టివ్గా తీసుకోవాలి, సహజంగా తీసుకోవాలి. దీన్ని మనం బాగా అధ్యయనం చేసుకుందాం. లోటుపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దుకుందాం. సమన్వయంతో అందరం ముందుకు సాగుదాం. तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हमरा हज हाउस नामपल्ली पर सैलाब मुतासरीन की इमदादी पैकेजेस के गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के जानिब से 20 लाख रुपए का खर्च से सैलाब से मुतासिर खानदानों में खुसूसी इमदाद तकसीम की जा रही है। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी व MLA अहमद पाशा खादरी, MLA कौसर मोयुद्दीन, MLA अहमद बलाला, MLA जाफर हुसैन मिराज, CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम, नारायणनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन,
टोलीचो की कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुए। 1908 के बाद अगर बारिश हुई तो 2020 के अंदर बारिश हुई। ये कोरोना की वजह से भी हमारे बहुत से भाई बहन रोज़गार से महरूम हुए, बहुत से परेशानियों में झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 550 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे, वो तकसीम किए गए। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब, उनके तमाम मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उसका लिहाज रखते हुए काफ़ी लोगों को अनाज तकसीम कर रहे हैं, कुछ ब्लैंकेट और बेडशीट तकसीम कर रहे हैं। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो बहुत परेशान है या उसमें जो नुकसान बहुत ज़्यादा हुए उनको दिया जा रहा है। उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन साहब का, मेम्बर्स का, और हमारे MLA साहब भी यहाँ पर आए थे शहर के, पुराने शहर के। उन तमाम जो लोग यहाँ पर आए और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये सेकेंड टाइम जो है ना हम लोग दे रहे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन में 20 लाख का राशन किट दिए थे जो स्लम एरियो में। ऐसा कभी वक्फ बोर्ड के थ्रू कभी भी नहीं हुआ। इंडिया की तारीख में भी वक्फ बोर्ड कभी भी ऐसे फलाई बहबूद के काम नहीं करा। ये हमारा बोर्ड KCR साहब की गवर्नमेंट में KCR साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ये फलाई बहबूद के काम कर रहे हैं। और किडनी, लीवर, हार्ट और कैंसर, कोविड के लिए भी हम लोग 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं। बास को 50 हज़ार रुपये भी कोविड के अगर सीरियस पेशेंट है, बड़े हॉस्पिटल में है, तो वो भी दे रहे हैं हम। और अल्लाह का करम यह है कि वक्फ बोर्ड में हम लोग इनकम जनरेट करके ये फलाई बहबूद का काम कर रहे हैं। और भी हम लोग जितना इनकम बढ़ेंगी वक्फ बोर्ड की, फलाई बहबूद का काम हर गली गली, हर कोने कोने में KCR साहब की सपोर्ट से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम, KCR साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना ये गारंटी नेट से भी हम लोग करेंगे। और ऑलरेडी गवर्नमेंट भी कर रही काम फलाई बहबूद का। हर घर घर को 10-10 हज़ार रुपये KCR साहब भी अनाउंस करे, 550 करोड़ रुपए दिए। अभी हम लोग जो है ना 20 लाख रुपए का राशन किट, ब्लैंकेट और जो है ना बेडशीट, ये हम लोग जो है ना ये सब चीज़ हम लोग दे रहे हैं। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग यहाँ से वक्फ बोर्ड से इमदाद का काम बराबर करेंगे गरीब आवाम के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। हमेशा जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम जो भी रही नहीं करते थे, मगर हम लोग ये बोर्ड बनने के बाद में KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया की तारीख में पहली बार जो है ना वक्फ बोर्ड से इमदादी काम जारी है। और जब तक हमारी गवर्नमेंट है, हमारा बोर्ड है, बराबर हम लोग इमदादी काम करेंगे, गरीब आवाम के लिए बराबर फलाई बहबूद का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे जो हो सकता बराबर, यहाँ से कोई भी एक्सीडेंट हो या और कुछ भी हो, गवर्नमेंट जो करना है गवर्नमेंट भी कर रही, वक्फ बोर्ड भी काम करेंगे। और वक्फ बोर्ड की जो इनकम, किरायों की, जो भी वक्फ फंड की, जो भी रेंट की वगैरह की, जो भी हम लोग दरगाहों का अराज करते हुए सब जो भी इनकम अल्लाह के करम से करोड़ों में जो है ना आज हमारे वक्फ बोर्ड को आ रहे पैसे, और हम लोग भी जो है ना गरीब आवाम में तकसीम का काम भी जारी रखे। हम कितने लोगों को दिया? आज 1500 लोगों के लिए दिया। आज जो गरीब एकदम जो परेशान हो गए लोग, वैसे लोगों को 1500 लोगों को बेडशीट, ब्लैंकेट और राशन किट। कहाँ के लोगों को दी? ये बाबानगर, अलीनगर, मलकपेट, शंकर नगर, याकूबपुरा और जो है अपने कारवान नदीम कॉलोनी, ऐसा जहाँ जहाँ इफेक्ट हुआ एरिया वहाँ पर भिजाए हम लोग। राजेंद्र नगर वगैरह में हर जगह, और महेश्वरम में जहाँ जहाँ भी इफेक्ट हुआ भिजाए हम सबकी सपोर्ट से जो है ना बोर्ड मेंबर्स, MIM, हम लोग सब मिलकर जो है ना ये गरीब आवाम के लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम लोग, KTR साहब की सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं। बिहार के नवमुंतखब मजलिसी अरकान असेंबली अपनी कामयाबी के बाद आज हैदराबाद पहुंचे ताकि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी से मुलाकात कर सके। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन नवमुंतखब अरकान असेंबली अख्तर इमान, इजहार असफी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद और अजहर नईमी का नारे तकबीर की गूंज में खैर मकदम किया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों मजलिसी कारकुन जमा थे। इस्तकबाल करने वाली अहम शख्सियतों में अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कौसर मुहिउद्दीन, मौजम खान, रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन नाफंदी, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स सोहेल खादरी, हारून फरहान और दूसरे शामिल थे। साबिक में माजिद हुसैन जो बिहार की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज थे, इन अरकान असेंबली के साथ हैदराबाद पहुंचे। समझा जाता है कि बैरिस्टर असद नवीसी की रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद बिहार मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास होगा, जिसमें नए पार्टी लीडर का इंतखाब किया जाएगा। फीस वसूल न होने पर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल की जानिब से भूख हड़ताल। नवाब साहब कुंटे में वाक़ स्कूल के स्टाफ मेंबर्स फीस वसूल न होने पर
कसमापुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत के जानिब से कोई मदद नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर जा बैठे, जिसमें सदर बहादुरपुरा मंडल TRSMA अहमद इदरीस शरीफ, डायरेक्टर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल और टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। हम लोग ब्रिलियंट स्कूल के टीचर्स हैं। 8 महीने से स्कूल बंद है, बहुत परेशानी में जा रहे हैं हम लोग। और कई ऐसे टीचर्स हैं जिसकी सिर्फ टीचिंग करने से ही घर चलता है। 8 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का आज 84 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो अमेरिका में जेर इलाज थे। उनकी मैयत बहरीन लाई जा रही है। बहरीन के हुक्मरान शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने मुल्क में एक हफ्ते के सोग और तमाम सरकारी दफातर को 3 दिन की तातील का ऐलान किया है। कई अरब ममालिक के सरबराहों ने शेख खलीफा के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया है। बहरीन के शाही महल से मौसूला इत्तला के मुताबिक इनकी तदफीन निजी तौर पर की जाएगी और सिर्फ अरकान खानदान को ही इसमें शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीनामारों ने आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ऑपरेशन एंड डाटा के मरबूत सेंटर का इफ्तिताह किया और कहा कि गुज़िश्ता 6.5 साल में तेलंगाना में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। तेलंगाना के क़याम के बाद लोगों को अमन ज़ब्त को लेकर बड़े खदशात थे, मगर पुलिस ने अमन ज़ब्त की बरकरारी के ज़रिए इन खदशात को दूर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की के लिए अमन ज़ब्त की बरकरारी बहुत ज़रूरी होती है और हमारी रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए इस ज़िम्मन में एक मिसाल रखती है। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस CV सजनार और दूसरे भी शरीक थे। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्रीमती P. सबिता इंद्र रेड्डी गारू, स्थानिक MLA आर्किपूडु गांधी गारू, మా మేయర్ గారు గుంటూరు రామ్మోహన్ గారు, MLC శ్రీ నవీన్ కుమార్ గారు, శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ IT, శ్రీ దామోదర్ గారు, చైర్మన్ ఆఫ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్, శ్రీ M. మహేందర్ రెడ్డి గారు, DG ఆఫ్ పోలీస్, ఆల్ ముగ్గురు కమిషనర్స్, అంజనీ కుమార్ గారు, మహేష్ బాబు, మహేష్ భగవత్ గారు, సజ్జనార్ గారు, other IPS officers, L&T technicians, distinguished guests, media friends, ladies and gentlemen, अंदरिकी नमस्कार। I am happy that the Public Safety Integrated Operation Center and Data Center by the Telangana State Police is inaugurated by none other than our dynamic IT Minister Shri K. Tariq Ramav Garu. We all know that government have taken up the Hyderabad Safe and Smart City project with the sole objective of citizen-friendly, holistic, integrated and responsive CCTV system for 3 commissioners, Hyderabad, Cyberabad and Rachakunda. The main center of this project is this Telangana Police Public Safety Integrated Operations Center and Data Center. This center will host integrated operations, command, computer, aided call taking and dispatching, and provide single view of our 10,000 government cameras and integrated our 1 lakh community cameras. This center provides cutting-edge technologies like computer vision, facial recognition, cyber security, and a state-of-the-art data center with 44 servers, racks for video storage. रियासती हुकूमत ने ऐसी तमाम ज़रूरी अराजियात को जिनकी मामला सादे कागज पे की गई है और जो 2 जून 2014 से कबल की गई हैं उनको बाकायदा बनाने 10 नवंबर तक दरखास्तें दाखिल करने का ऐलान किया था, जिसके तहत कल तक 9 लाख दरखास्तें वसूल हुई हैं। किसानों की दरखास्त पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में इस ज़िम्मन में ऐलान किया था।
चुनाचे जिला कलेक्टर को ऐसी दरखास्तों को कबूल करने की हिदायत दी गई थी। इस सिलसिले में मजीद अहकाम और गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। खबरती बताया गया था कि 5 एकड़ से कम अराजी रखने वालों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना रखा जाएगा। ये स्कीम हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, काकतिया मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा तमाम बल्दी कॉरपोरेशंस और बल्दियात में लागू होगी।